Welcome to all of you. Today we are going to talk about the contamination, preservation, and spoilage of fruits and vegetable. In the last video or in the last lecture, we have seen importance of the microbes in foods. Also, we have talked about the probiotics, spoilage, and in the second video or second part, we have talked about the growing conditions of the microbes. In that, we have seen that different categories or different storage condition. Today we are going to talk about the spoilage of fruits and vegetables, then preservation, contamination or source of contamination. In that, first we have start from the introduction. So as we know, all living creatures including humans depends on nature of their own foods. हमको पता है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है दे हैव देयर ओन नेचर ऑफ फूड. सो fruits and vegetables provide an abundant, inexpensive source of energy, body building nutrients and vitamins and minerals, and also some amount of water present in the fruits and vegetables. Most of our body consists of agricultural products which are usually seasonal and also spoil quickly. No doubt, spoilage of fruits and vegetables may have quickly because they have least shelf life or more moisture content. That's why fruits and vegetables get easily spoiled. But there are different conditions. Okay, nowadays the rotting process. Rotting is one type of spoilage of fruits and vegetables can be postponed by adding some preservatives or optimizing storage condition and applying modern techniques. Also, by use of modern techniques we can also postpone the rotting techniques, or by use of or by application of preservative. If we talk about the contamination of fruits and vegetables, first of all, what is contaminant? Contaminant, it is a Latin word which means made impure or pollute, और जिसको हम बोलेंगे कि impure or hazardous. So it is called, or it means that contaminant means impure in simple word. और source of contamination, if you talk about source of contamination की कौन से source है जहाँ से fruits और vegetables को contamination हो सकता है. So first है कि during harvesting and storage. ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज हम देखेंगे अगर तो फार्म पे बेसिकली जो है तो मेन सोर्स ऑफ जो है तो माइक्रोबियल लोड जहाँ से आता है दैट इज द सॉइल. सॉइल जो है तो मेन सोर्स है जो कि बैक्टीरिया का जहाँ से अटैक होना फूड के ऊपर या ग्रोइंग ऑन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. एंड आफ्टर दैट स्टोरेज कंडीशन. व्हेन वी डन हार्वेस्टिंग तो हमको देखना है कि स्टोरेज कंडीशन किस तरह से इट इज मेंटेन और हाइजीनिकली और अनहाइजीन किस तरह से. इफ यू मेंटेन इन हाइजीनिकली कंडीशंस so there is maybe no chances or less chances of cross contamination or maybe source of contamination. So storage condition should be also maintained in hygiene conditions. Then second one is mechanical damage. Mechanical damage basically due to the transportation. When we transport the fruits and vegetables from one place to another place or from farm to market or any mart or big malls, so we should take care of some things that food should not come in contact with the non-food items or other chemicals or pesticides or fungicides. ये foods जो है तो इनके contact में नहीं आना चाहिए. Basically it means that when we transporting the fruit or vegetable from farm to market or from one place to another place, so there should be specific or special vehicle for that fruits and vegetable. Don't transport the fruits and vegetables with non-food item जो कि harmful हो सकता है, जो कि source of contamination हो सकता है to the fruits and vegetables. Then soaking. If we are soaking fruits and vegetables in water, तो water should be fresh. Don't use reused water for soaking of fruits and vegetables. It may be cause or it may be source of contamination. Then handling of fruits and vegetables, like for example if you are handling the fruits and vegetables in carrots, in containers or in
bags, so it should be clean or properly hygienic. Or if you are handling fruits and vegetables by hand, so hand should be covered with gloves, so there may be no chances of cross contamination or source of contamination. Then when we washing the fruits and vegetables, the water should be clean or fresh. Don't use reused water for washing of fruits or vegetables. Then if we talk about the spoilage or the spoiled part of the fruits, there are some techniques or methods or processes, that is trimming, peeling, then cutting, pitting and corning of spoiled parts. Corning of spoiled parts means that remove the microorganism but additional contamination during handling. अभी यहाँ पे अगर हम ये प्रोसेस अगर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर स्पॉइल्ड पार्ट है किसी फूड के ऊपर, उतना पार्ट अगर हम निकाल देंगे, ट्रिमिंग करेंगे या उसको पील करेंगे, ओके, या उसकी कटिंग करेंगे, तो उतना पार्ट तो निकल जाएगा, बट मे बी चांसेस ऑफ माइक्रोबियल लोड इन ऑल्सो हैंडलिंग. तो अगर हैंडलिंग अगर हम प्रॉपरली नहीं करेंगे, अगर ये सारी प्रोसेस करने के बाद भी, तो देयर मे बी ऑल्सो चांसेस ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन और मे बी सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन. देयर इज ऑल्सो वन, सो दैट स्वेटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग हैंडलिंग. तो हैंडलिंग अगर कर रहे हम या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो वी हैव टू टेक केयर वन थिंग, दैट स्वेटिंग नहीं होना चाहिए, मतलब पसीना नहीं आना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को. सो इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ कंटेमिनेशन और सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. देन पॉसिबल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज लाइक ट्रेज विच वी आर यूजिंग फॉर ट्रांसफरिंग फूड्स और स्टोरिंग फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. देन टैंक्स, अगर किसी टैंक्स में हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को रख रहे हैं. देन उसके बाद आता है बीन्स या टेबल्स या स्क्रीन्स या ब्लेड्स या कंटेनर. सो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ कंटेमिनेशन. अगर ये सारी चीज़ें, ये सारे इक्विपमेंट्स, ये सारे यूटेंसिल्स अगर हमारे क्लीन नहीं रहेंगे, अनहाइजीन रहेंगे, तो देर में बी मोर चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ fruits and vegetables. Now if we talk about the spoilage of fruits and vegetables, so the action or process of spoiling of perishable goods, it means spoiled food or damaged or injured foods जो होते हैं basically, the food that injured or damaged that is undesirable for human consumption. Obviously अगर कोई food damaged है या injured है, तो मे बी इसको ऑब्वियसली जो है तो डिस्कार्ड करना चाहिए, इसको खाना नहीं चाहिए. अगर इफ वी कंज्यूम द इंजर्ड और डैमेज फूड, देयर में भी चांसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग, देयर में भी चांसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग और फूड इंटॉक्सिकेशन और फूड इन्फेक्शन. सो वी हैव टू आफ्टर इफ वी कंज्यूम द इंजर्ड और डैमेज फूड, में भी चांसेस ऑफ डायरिया, वॉमिटिंग, देन स्टमक पेन. सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ after consumption of the damaged or injured foods. So avoid consumption of injured or damaged foods. Okay, if you talk about the spoilage, in that the spoilage caused due to so many things. Okay, like we have talked, just like earlier I said that transportation, okay, mechanical damage, then handling, okay, etc. Now basically there are three major causes of spoilage due to food get spoiled or fruits and vegetable get easily spoiled. That is, first one is physical injury. Physical injury food को नहीं होना चाहिए. Basically physical injury कब होता है? When we are stacking of foods on the layer 1, 2, 3, 4, 5. So reduce the layer. It may be avoid the physical injury. Also it done in ट्रांसपोर्टेशन. जब ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं तो मे बी चांसेस ऑफ फिजिकल इंजरी फूड को होने की ज़्यादा चांसेस है. मैकेनिकल डैमेज जिसको हम बोलेंगे. देन एंजाइम एक्टिविटी, देन एक्टिवेशन और एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फूड के अंदर हो रही है या फूड के ऊपर एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, तो उसको मे बी हमको रिड्यूस करना है, उसको हमको कम करना है, इनएक्टिवेट करना है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम करना है बाय यूज ऑफ डिफरेंट प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस. देन अटैक ऑफ माइक्रोब्स. देयर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ microbes which can fruits and vegetable get affected. So microbes के जितने सारे सोर्स है उसको हमको अवॉइड करना है, इसकी वजह से हम जो है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को जो है तो प्रोटेक्ट कर सके या उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द डिटरेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मे बी देयर इज सो मेनी
reasons or so many causes. First one is physical spoilage, then second one is action of their own enzyme, then third one is microbial action. Microbial action अगर बढ़ जाता है, microbial contact में अगर food आता है, there may be chances of deterioration of food. Then mechanical damage, as I said, that transportation or handling or stacking of fruits and vegetables, so it can cause or deteriorate the raw fruits and vegetables. Then action of animal, bird and insects. When fruits or vegetables come in contact with animals, birds or insects, they can cause or deteriorate the fruits and vegetables. So protect your fruits and vegetables from animals, birds and insects. Basically these animals or insects or birds come in contact in fruits in farms, so avoid these things to protect our fruits and vegetables. Then woundings means one type of damage, और जिसको हम क्या बोलेंगे, wound बोले तो जख्म एक तरह का, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल किसी फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के ऊपर है, तो वाउंडिंग कैन डिटोरिएट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और क्या होता है, अगर वाउंडिंग किसी फ्रूट्स में है तो वो क्या करता है, दूसरे फ्रूट्स को भी डैमेज पहुंचाता है. उसकी जो माइक्रोब्स है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोनिज्म्स है, वो दूसरे फ्रूट्स के ऊपर भी ग्रो हो जाते हैं. सो अगर वाउंडिंग अगर किसी फ्रूट्स में वगैरह है तो वो फ्रूट्स को हम अलग कर ले, उसको जो है तो फ्रेश फ्रूट से निकाल दे, ठीक है. देन उसके बाद आता है फ्रीजिंग. एक्सेस ऑफ फ्रीजिंग अगर होता है तो मे कैन कॉज और डैमेज दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और एक्सेस ऑफ ड्राइंग भी अगर हो रहा है तो ऑल्सो मे कैन कॉज द डिटेरियोरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइदर लो और हाई. ज़्यादा लो टेम्परेचर रहेगा तो भी इट इज़ हार्मफुल और इट इज़ डिटोरिएट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ज़्यादा हाई भी रहेगा तो ऑल्सो कैन कॉज और डिटोरिएट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. So every time maintain the temperature. Then other mishandlings also can cause the or deterioration of the fruits and vegetables. When contact with spoiling fruits and vegetables may transfer microorganism और इंक्रीजिंग वेस्टेज. जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई स्पॉइल फूड है और वो कांटेक्ट में आ रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो माइक्रोइज्म जो है तो ट्रांसफर हो जाएंगे और इंक्रीज हो जाएगा वेस्टेज जो है तो इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 या 5 अगर फ्रूट्स स्पॉइल्ड है, अगर हम वो कंटेनर में वो फ्रेश फ्रूट्स के साथ या जो अच्छे फ्रूट्स हैं उनके साथ अगर उसको मिक्स करते हैं तो देयर में भी चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेस्टेज और स्पॉइलिंग अदर फ्रूट्स. सो अवॉइड दिस थिंग्स. ओके, अवॉइड दिस थिंग्स कि स्पॉइल अगर फ्रूट्स है कोई तो उसको हम पहले ही अलग कर ले, फ्रेश फ्रूट के साथ उसको मिक्स ना करें. देन मोस्टली स्पॉइलेज ऑकरिंग ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शन सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड. अब बैक्टीरिया एंड ईस्ट तो हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आइज. सो बैक्टीरिया, मोल्ड तो हम जनरली देख सकते हैं कि मोल्ड ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज़ अ कॉटनी लाइक स्ट्रक्चर, तो वी कैन कॉमनली सीन. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट or causes or type of, for example, spoilage. So first one is bacterial soft rot. It is caused by generally Erwinia carotivora. This is the species of microorganism Erwinia carotivora, जो कि commonly जो है तो जो कि कोई भी वेजिटेबल्स के अंदर जनरली जो है तो ग्रो हो सकता है, ठीक है. इसके अंदर अगर हम माइक्रोइज्म्स देखेंगे तो सुडोमोनास है, क्लोस्ट्रीडियम है, बैसिलस स्पीसीज है. मैं also isolate from these rods. So these microorganisms can cause the fruits and vegetables. Also Rhizopus soft rots. Okay, Rhizopus soft rot. It is caused by Rhizopus stolonifer, जो कि कॉटनी ग्रोथ ऑफ मोल्ड विथ स्मॉल ब्लैक रॉड्स के जैसा होता है. कि कॉटनी लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के ऊपर. बेसिकली जो है तो फ्रूट्स के ऊपर ही होता है, वेजिटेबल्स के ऊपर जनरली जो है तो सॉफ्ट रॉड्स होते हैं. तो राइजोपस या राइजोपस स्टोलिनिफर जो है तो मोल्ड के जैसा होता है, जो कि ब्लैक डॉट्स फ्रूट्स के ऊपर आते हैं, तो दैट कॉल द राइजोपस सॉफ्ट रॉड जिसको हम बोलेंगे. उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कि ब्लैक मोल्ड रॉड. इट इज कॉज बाय एस्परजिलस नाइजर से होता है ड्यू टू ब्लैक मोल्ड रॉड. अगर कोई भी फ्रूट्स के ऊपर अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि ब्लैक मोल्ड रॉड हो गया है तो इट मीन्स इट इज कॉज ड्यू टू एस्परजिलस नाइजर. तो ये जो इसका कलर जो होता है बेसिकली डार्क ब्राउन टू ब्लैक होता है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक इसके बीच में होता है, जिसको हम ब्लैक मोल्ड रॉट बोलेंगे, ठीक है. द इन्वॉल्व ऑफ माइक्रोइज्म्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज
रिगार्डिंग द फ्रूट्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, जैसा अभी मैंने बताया कि इट इज कॉज ड्यू टू इरवेनिया करटोरा और सुडोमोनास स्पेसीज. देन उसके बाद ग्रे मोल्ड रॉड भी है ड्यू टू बोट्राइटिस सिनेरा. देन राइजोपस सॉफ्ट रॉड, अभी जैसे बताया मैंने राइजोपस स्टोलिनिफर राइजोपस निग्रिकन्स की वजह से होता है. देन उसके बाद आता है एंथ्रैक्नोज. ये बहुत सारे माइक्रोनिज्म्स की लिस्ट है जो कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अर्लियर जो टेबल बताया था आपको ड्यूरिंग कॉलेज पीरियड जब हमने क्लास लिया था कि हमने 2 टेबल्स बनाए थे. ठीक है, वन इज फूड का टेबल बनाया था एंड देन सेकंड वन इज कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज, कि कौन से कॉजेज की वजह से कौन सा फूड स्पॉइल हो रहा है. तो एक बेसिकली एक टेबल बनाना है आपको भी. ओके, तो ये टेबल में आपको लिखना है कि टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, then if we talk about the preservation of fruits and vegetables, so the action of preserving something, अगर हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है और किसी फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करना है तो प्रिजर्वेशन एक्शन प्रिजर्व फूड इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स डिजायरेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब डिजायरेबल होना चाहिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको खाना है तो इस हिसाब से हमको फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को जो है तो प्रिजर्व करना है. इसके अंदर हमको कंट्रोल करना है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विल रिड्यूस मॉइस्चर विल रिड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अगर कंट्रोल में रहेंगे तो माइक्रोनिज्म भी जो है तो कम रहेंगे या रिड्यूस कंडीशन में रहेंगे. देन उसके बाद अगर हम माइक्रोनिज्म रिमूवल थ्रू वॉशिंग, जो माइक्रोनिज्म फॉर एग्जांपल है जो हार्वेस्टिंग किया हमने कोई फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का, तो फार्म के ऊपर ही हम उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे. मतलब जितने भी माइक्रोनिज्म उसके ऊपर आए हैं तो बेसिकली क्या हो जाएंगे, जनरली फर्स्ट वॉशिंग में वो रिमूव हो जाएंगे बट लीव मच मोर ऑफ द नेचुरल नॉर्मल फ्लोरा. तो लेकिन कुछ माइक्रोनिज्म वहाँ पे जो रिमूव हो जाएंगे वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इधर स्पॉइलेज कंडीशन को रिड्यूस करेंगे या माइक्रोनिज्म कंडीशन को जो है तो लोड ऑफ माइक्रोनिज्म को क्या करेंगे, वो कम करेंगे. तो इसलिए उसको सबसे पहले फार्म के ऊपर हम वॉश कर लेंगे विथ फ्रेश वाटर. देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉश विथ गुड बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी वाटर. इट विल रिड्यूस लोड ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रोनिज्म mostly growth occur on the moisture surface or moist surface of the fruits and vegetable. As we know, अगर जहाँ पे moisture ज़्यादा रहेगा मे बी chances of microorganism growth का वहाँ पे ज़्यादा रहेगा. जितना moisture कम रहेगा किसी fruits के अंदर या vegetables के अंदर या कोई भी food के अंदर तो मे बी chances of less activity of microbes. Then if you talk about the preservation, there are different methods or so many methods for preservation of fruits and vegetables. SFCs, that removal of microorganism or keeping out of microorganism. Then removal of microorganism, use of heat or high temperature, use of low temperature. Then chilling है. Then उसके बाद में है freezing. Then drying. Then use of preservative also और irradiation और preservation by irradiation जिसको हम cold sterilization भी बोलते हैं. So method of preservation अगर use of heat की बात करेंगे तो inactivation और inactivate their enzyme and reduce the multiplication and load of microorganism by use of heat. By use of low temperature, अगर कम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मे बी वी कैन स्टोर फॉर एग्जाम्पल एप्पल पोटैटोज कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लिमिटेड टाइम. तो कुछ टाइम के लिए हम ये लो टेम्परेचर पे पोटैटोज को एप्पल्स को जो है तो प्रिजर्व कर सकते हैं. देन अगर चिलिंग यूज ऑफ कोल्ड वाटर और आइस और मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर और बाय वैक्यूम कूलिंग, ये सारी प्रोसेस या सारी टेक्निक्स को यूज़ करके हम जो तो चिलिंग प्रोसेस जो है जनरली जो है तो प्रिजर्वेशन प्रोसेस है ये हम कर सकते हैं. देन कोल्ड वाटर स्प्रे कर सकते हैं फॉर प्री कूलिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग. प्री कूलिंग करने के लिए जब जैसा हार्वेस्टिंग होती है तो प्री कूलिंग जैसा करते हैं हम तो कोल्ड वाटर जनरली हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. इससे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगी माइक्रोबियल लोड और माइक्रोबियल एरिया प्रिजर्वेशन ये तो बढ़ जाएगा. देन ईच फ्रूट हैज़ इट्स ओन ऑप्टिमम टेम्परेचर. हमको पता है हर फ्रूट्स का हर वेजिटेबल्स का जो है तो एक खुद का एक अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होती है फॉर चिलिंग स्टोरेज. तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको हिसाब से उसको हमको क्या करना है, स्टोर करना है. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द फ्रीजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज इन फ्रोजन कंडीशन इट विल डिक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोनिज्म. ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर लो रहा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है तो इंक्रीज नहीं होगी. फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है तो अगर फ्रोजन कंडीशन में रखे, जैसे कि माइनस के अंदर टेम्परेचर होता है बेसिकली फ्रोजन कंडीशन जो होती है तो दैट इज -16 डिग्री सेल्सियस. तो इस कंडीशन में अगर हम किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल को अगर स्टोर करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी अगर फ्रूट्स के अंदर ऑलरेडी थी तो वो वहाँ पे क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी.
तो लो टेम्परेचर पे जनरली जो है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जनरली रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इन फ्रूट्स फॉर फ्रीजिंग अनडिजायरेबल चेंजेस में टेक्स प्लेस सच एज डार्कनिंग, डिटोरिएशन इन फ्लेवर और स्पॉइलेज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पेशली मोल्ड। डिटोरिएशन ऑफ फ्लेवर होना, देन डार्कनिंग होना प्लेसेस का स्पॉइल होने के बाद, देन उसके बाद चेंज इन कलर आना, स्ट्रक्चर का जो है तो फिजिकली जो फूड जो है तो चेंज होना, दीज आर दी इंडिकेशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड्स। देन फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट की बात करेंगे हम तो सैक्रोमाइसिस और क्रिप्टोकोकस स्पेसीज जो है, मोल्ड की बात करेंगे तो एस्परजिलस, म्यूकर, राइजोपस स्पेसीज भी है रिपोर्टेड ऑर्गेनिज्म इन फ्रोजन फूड्स। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो तो होते हैं। देन उसके बाद अगर ड्राइनिंग की बात करेंगे हम, ड्राइंग द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कंपैरेटिवली लो एंड दैट स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स आर लाइकली टू बी द मोस्ट न्यूमरस। अब कोई फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की हम ड्राइंग करेंगे फॉर प्रिजर्वेशन प्रोसेस, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जितने भी जो भी वाटर कंटेंट या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा फ्रूट्स के अंदर वो है तो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका अमाउंट जो है तो डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है तो अमाउंट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है तो वो भी उसका क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे ये भी डिक्रीज हो जाएंगे, अगर मॉइस्चर डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म भी डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टोरेज कंडीशन या प्रिजर्वेशन लाइफ जो है तो कोई भी फ्रूट्स की, कोई भी वेजिटेबल्स की बच जाएंगी। फॉर वी कैन यूज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और वी कैन स्टोर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर द प्रिजर्वेशन प्रोसेस और फॉर इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। सो दिस रिजल्ट्स इन एडिशनल लॉस ऑफ वाटर, मतलब डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेट होना, बट मोर नंबर ऑफ पोरस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ फॉर्म इन द product. The increase in the moisture of fruits or vegetables may be chances of increase of number of microorganisms. So ड्राइंग इसलिए करना है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को हमको शेल्फ लाइफ बढ़ाना है या प्रिजर्व करना है तो वी कैन रिड्यूस द मॉइस्चर लेवल ऑफ दैट फ्रूट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ दैट फ्रूट एंड vegetables. Then we can also use of some preservatives. Chemicals have been applied fruits chiefly as a dip or spray. कोई भी फ्रूट्स को अगर हम कोई प्रिजर्वेशन अगर अप्लाइड करेंगे फ्रूट्स या चिफली अगर कोई केमिकल में हम डीप करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है. देन अगर कोई केमिकल्स के साथ हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को अगर स्प्रेइंग कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो गुड. दैट इज स्प्रेइंग हो रहा है कोई भी प्रिजर्वेटिव अगर कोई फ्रूट के ऊपर, तो ऑब्वियसली दो प्रोसेस है. तो डीप कर सकते हैं हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को कोई केमिकल्स के अंदर, देन या फिर वो केमिकल के साथ हम उसको स्प्रे कर सकते हैं जितने भी हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं. और उसके बाद में हम उसको रैप करेंगे फॉर फ्रूट्स. जनरली रैपिंग जो होता है जनरली फ्रूट्स का रैपिंग करेंगे आफ्टर स्प्रेइंग ऑफ chemicals or preservatives. Among substances that have been applied to the outer surface of fruits and vegetables are waxes. जैसे कि waxes है, वैक्सिंग जनरली हम जो करते हैं जैसे कि FPT या आई थिंक FPT या पोस्ट हार्वेस्ट में वो प्रैक्टिकल होगा. दैट इज वैक्सिंग, वैक्स कोटिंग जो करते हैं ना, दैट इज फॉर प्रिजर्वेशन. देन हाइपोक्लोराइड्स आल्सो वी कैन यूज, बाइफिनाइल एंड अल्कलाइन सोडियम और फिनाइलफिनेट. सोडियम क्लोराइड इज द ओनली एडेड केमिकल प्रिजर्वेटिव इन कॉमन यूज. सोडियम क्लोराइड जो है तो कॉमनली यूज करेंगे हम प्रिजर्वेटिव बोल के, ठीक है. देन जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट जो है तो जनरली एलिमिनेट करता मोस्ट ऑफ मोल्ड को जो है तो जनरली एलिमिनेट करता है जनरली, जैसे कि बीट्स है उसके ऊपर. देन बायोफिनाइल्स वेपर्स है विल कंट्रोल दी फ्यूजारियम स्पेसीज, जो कि फ्यूजारियम स्पेसीज को जो तो कंट्रोल करता है. देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जैसे कि हम जनरली बात करेंगे जैसे कि सॉल्ट, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, टेस्ट एनहांसिंग, देन कंपाउंड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर प्रिजर्वेटिव. जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड को अगर हम ले रहे हैं तो सिर्फ सोडियम क्लोराइड अगर हम इंडिविजुअल ले रहे हैं तो इसके साथ अगर कोई और प्रिजर्वेटिव भी हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, ठीक है. फॉर कॉम्बिनेशन, फॉर इसका टेस्ट जो है तो डिक्रीज नहीं होना, टेस्ट इन्हांस होना, इसके लिए हम जनरली इसको यूज कर सकते हैं. ऑल्सो कैन इट विल रिड्यूस द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड डिस्कलरेशन. अगर सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऑल्सो इट reduces enzymatic browning and discoloration. Okay, so this is the today's our topic regarding the fruits and vegetables, that is contamination, source of contamination, spoilage and preservation.
Thank you. If you have any queries, you can contact me in group, in personal messages, in text, or you can also call me. Okay, thank you. Best of luck.